Hello everyone, I am Shwetamri Sharma from KMS Fashion. So today our topic is play and types of play, which is active play as well as passive play. So what is basically play? Play क्या होता है? ये जो हमारा है, this is a child development topic or we can say human development topic. Okay, very important topic and mostly the MCQs come from this question. हमारे MCQs इस question से आते ही आते हैं. So ये काफ़ी important and as well as it is an interesting topic. So let's start. Firstly, we will talk about different kind of definitions given by different peoples इन रिस्पेक्ट ऑफ प्ले के रिस्पेक्ट में अलग अलग मतलब अलग अलग मीनिंग अलग अलग पर्सनस के द्वारा वी हैव टू सी बिकॉज समटाइम्स द क्वेश्चन कम्स दैट दिस पर्टिकुलर वर्डिंग इज सेड बाय और वी कैन से दैट द प्ले डेफिनेशन इज गिवन बाय सो एंड सो पीपल्स. सो वो सब कुछ समझने के लिए हमें अलग अलग लोगों की परिभाषा को भी जानना पड़ेगा रिगार्डिंग माई प्ले. So play is a kind of amusement. What does the amusement means in the work? Amusement means entertainment. Amusement means entertainment. So that means play is any kind of entertainment in the work. Have you listened amusement parks? So those are entertainment parks basically. It is given by Valentine. Valentine ने ये जो definition है ये दी थी कि जो play है वो हमारा entertainment है काम के अंदर ही. Then stern give, STERN, stern give, the play is a kind of voluntary self-constrained activity. What they say that it is basically कि आप खुद को इन्वॉल्व रखते हैं, खुद को क्लोज रखते हैं, खुद के साथ काम करते हैं, खुद के साथ एक्टिविटी को प्ले करते हैं. दैट इज पर्टिकुलर माई प्ले. नेक्स्ट, ग्ल्यूक्स said that play is what we do when we are free to do what we wish for. That means they are talking about any of the person or the children कि play is what we do. जो भी हम काम करते हैं वो play है. जब हम फ्री होते हैं, जब हमारे पास फ्री टाइम होता है और उस टाइम पे जो भी हम करना चाहते हैं, that is particular my play. Then Thompson said that play is the impulse to carry out certain instinctive actions, that it is an action. ये एक तरह का एक्शन है जिसके अंदर काफ़ी सारे काम जो हमारे इंटरनली हम चाहते हैं. लाइक आपने कभी देखा होगा दैट कि जो बड़ा इंसान है वो भी बच्चों की तरह रिएक्ट करता है व्हेन दे स्टार्ट प्लेइंग. सो दैट इज समथिंग इन हिम. सो वो कुछ उसके अंदर होता है जो एकदम इम्पल्स बाहर निकल के आता है ड्यूरिंग माई प्ले. Then Sir T.P. Nunn said that play is a profound manifestation of creative activities. कि हमारे अंदर जो प्रोड्यूस होती हैं, जो हमारे अंदर एक प्रोसेस चलता है मैनिफेस्टेशन का, रेगुलरली चीज़ों के निकलने का, रेगुलरली क्रिएटिविटी का, रेगुलरली इनोवेशन का, उस सब को जब हम बाहर लेके आते हैं तो वो एक प्ले बन जाता है. Correct. So these are certain type of definition for play particularly. Now we will get to know about types of play. अब हमारे यहाँ पर हम देखेंगे what are my types of play. So we have two kind of types, that is active play as well as passive play. So कितने तरह के हैं हमारे पास play? We have two kinds of play. One is active play as well as other is my passive play. So we will study about both individually. Firstly we will talk about active play. What is active play? Active play क्या चीज़ होती है? Let's see. Child got enjoyment from what they themselves do, whether it is running just for a fun or constructing something from clay, paint or wood. Just see, play, definition of play for each and every one of us is also different. हम सबके लिए भी play की जो definition है वो थोड़ी सी अलग है, थोड़ी सी different है. So किसी भी बच्चे के लिए प्ले कोई भी एन्जॉयमेंट हो सकती है, चाहे वो उसको रनिंग से करे और बाय मेकिंग समथिंग
he will enjoy or he will be playing something, he was doing something, he was creating something or innovation, but in the innovation where he is active, child is himself is active, he was doing himself something, अगर वो इंसान वो बच्चा खुद से कुछ कर रहा है तो उसको एक्टिव प्ले माना जाता है. Common in early childhood, when our children are in their early childhood stage, then that this particular active play is so much common. Free spontaneous play. अब now if I talk about different kind of play, so क्या चीज़ होती है इन दिस पर्टिकुलरली फ्री स्पॉन्टेनियस प्ले इज एन ऐसी एक्टिव फॉर्म होती है प्ले की जिसके अंदर चाइल्ड डू व्हाट दे वांट एंड हाउ दे वांट. सो मीन्स दे आर फ्री टू डू एनीथिंग. दे बेशक वो लोग छत पे जाके एज्यूम ही करे किसी चीज़ को, बट दे इन्वॉल्व देयर. मोस्टली इन माई एक्टिव प्ले आई इन्वॉल्व फिजिकली, मेंटली, मीन्स साइकोलॉजिकली, बोथ. ओके, इन योर एक्टिव प्ले आप फिजिकली और साइकोलॉजिकली दोनों तरह से एक्टिव रहते हैं. नेक्स्ट इज माई ड्रामेटिक प्ले. मीन्स दीज आर माई सर्टेन थिंग्स विच आई डू फॉर माई एक्टिव प्ले. ड्रामेटिक प्ले मतलब लाइक घर घर खेल लेते हैं, ओके और छुपन छुपाई, आंख में चौली, दैट वी क्रिएट समथिंग, हम ड्रामा क्रिएट करते हैं. देन डे ड्रीमिंग. व्हाट इज डे ड्रीमिंग? इट इज ऑल्सो लाइक दे the activity is mentally rather than physically, but they repeat the dramatic play regularly. वो जब ड्रामे वाली प्ले को रेगुलरली करते हैं जो उनके माइंड में होता है कि लेट्स प्ले घर घर, तो वो मेंटली बहुत ज़्यादा होता है, बेहाल वो फिजिकली भी उस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं. देन कंस्ट्रक्टिव प्ले, दैट दे नीड टू मेक समथिंग. वो कुछ बनाते हैं, कुछ इनोवेट करते हैं, ट्राई करते हैं, वो कुछ क्रिएट करने की ट्राई करते हैं. देन म्यूजिक, दे लिसन म्यूजिक एज वेल एज दे विल डांस ऑन इट, सिंग ऑन इट. ओके, सो वो साथ साथ डांस करते रहेंगे, गाते रहेंगे, बजाते रहेंगे. कहीं पर भी सपोज इन ऑन अ टेबल दे स्टार्ट मेकिंग a sound of a tabla or anything else. Okay, so this is active play. And next is collecting and exploring. Means they collect certain type of things, okay, according to their society, according to their religion, and explore the things as well as वो देखते हैं कि इन चीज़ों से क्या क्या होता है. Games and sports, so means they are regularly involving in some kind of play, some kind of games, like any of the or we can say cricket or volleyball, basketball, any of the kind of play or sports. सो दिस इज पर्टिकुलर इज माई एक्टिव प्ले. एक्टिव प्ले वो होता है जिसके अंदर हमारा फिजिकली एज वेल एज मेंटली बहुत अच्छे तरीके से इन्वॉल्व होता है. करेक्ट. नेक्स्ट इज माई पैसिव प्ले. पैसिव प्ले क्या चीज़ होती है? पैसिव प्ले को हम अम्यूजमेंट भी बोलते हैं. इसको क्या बोलते हैं हम? अम्यूजमेंट. और अभी मैंने आपको अम्यूजमेंट का मतलब बताया था. क्या था अम्यूजमेंट का मतलब? एंटरटेनमेंट. सो इन एंटरटेनमेंट, नाउ जस्ट सी, व्हेन यू गेट टू नो टू बी एंटरटेन्ड, अगर आप बोलते हो कि आपको एंटरटेन्ड होना है, देन यू नीड नॉट टू वर्क फॉर इट, यू कैन जस्ट सी एंड बी एंटरटेन्ड, है ना. आपको काम ज़रूरी नहीं है आपको खेलना पड़े एंटरटेनमेंट खुद को करने के लिए. अब आप क्या करते हैं? मोबाइल फ़ोन चलाते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, और कोई यूट्यूब वीडियो देख ली, कोई सॉन्ग देख लिया. इट्स डजंट मीन दैट आप उस पर डांस भी करोगे या गुनगुनाओगे भी. सो यहाँ पर आपको क्या पता चल रहा है? दैट द एन्जॉयमेंट विद minimum efforts, you need not to do your physical work. यहाँ पर फिजिकल वर्क लेस हो जाता है और मेंटल या साइकोलॉजिकल ज़्यादा. करेक्ट. Watching other children play, watching TV, looking at the comics. So just by looking, they are playing. They are not playing, they are entertaining themselves. They are amusing. Okay. Minimum expenditure of energy means energy कम लगती है, but the enjoyment may be equal to that achieved from active play. So उनकी जो enjoyment है वो तो fullest होती है.
ठीक है, लेकिन उनकी जो एनर्जी होती है वो बचा लेते हैं, दे सेव देयर एनर्जी, दे डोंट एक्सपेंड इट। अम्यूजमेंट बिगिंस टू रिप्लेस एक्टिव प्ले एज द चाइल्ड अप्रोच प्यूबर्टी। जैसे ही बच्चा प्यूबर्टी पे आता है तो उसका फिजिकल प्ले कम हो जाता है और मेंटल प्ले ज़्यादा हो जाता है। दे स्टार्ट ड्रीमिंग। ओके, then what are the activities they used to do? They used to start reading, वो पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। गोइंग टू मूवी इज एन सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, लिसनिंग टू म्यूजिक और रेडियो इज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, सीइंग टीवी इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। मीन्स दे डू more this kind of work than the physical efforts. Okay, so these are my two types of play, that is my active play as well as my passive play. So आप लोगों को अच्छे से मतलब समझ में आ गया होगा। इफ़ यू फाइंड एनी ऑफ द confusion, any of the queries or anything related to the thing, please do comment and please do subscribe the video as well as share with your friends so that they can also get the valuable information. So please be safe,